So people used to look at me from a very different angle. They used to be like, अच्छा call center, लोगों को समझ नहीं आती थी कि ग्रेजुएशन के बाद कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, इसका मतलब डिग्री में कोई प्रॉब्लम है या आप नालायक हो. सो वो हर कोई आपको एक बड़ी अजीब सी नज़र से देखता था कि यार कॉल सेंटर का लड़का है, कॉल सेंटर की लड़की है, इनका क्या होगा, क्या स्टैंडिंग होगी. एवरी सिटी इज केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ. And we at Salezlytics, we help people becoming a better salesman. We help companies in becoming better at sales. Taken very seriously. ये हमारे मुंह पर unfortunately dilemma है कि लोग इस तरफ आते नहीं है. हमारा यूथ डरता है, घबराता है. I'm pretty bad with numbers. Numbers जहाँ पर आते हैं ना बस वहाँ सर दर्द होने लगती है. लेकिन उसके साथ साथ I'm always good in making my own numbers. Understanding how things are happening. Real estate में आ जाओ, बहुत पैसा है. Then another friend came in, he started saying कि यार टेलीकॉम में आ जाओ, टेलीकॉम में बहुत पैसा है. इंडिया की टेक सीन के अंदर they were the first generation of tech adapters. They were the first generation of founders. आपकी अगर R&D zero है तो how do you expect आपकी R&D zero है? क्यों R&D zero है कि आपके पास पॉलिसीज नहीं? करके देखो पीटा. पूरे दुनिया में इस बात पे ढिंढोरा पीटा कि जी bleed blue. Made in India. We are Indians. They took pride in it. It involves your phone, it involves your PC, it involves your television, it involves your wearables, it involves everything. हम evolve नहीं कर रहे. हम as a nation grow इस वजह से नहीं कर रहे कि हम evolve नहीं कर रहे. Hello and welcome to another episode of Timesglo podcast. Today we have with us Babar Mushtaq. Babar is into sales और बाकी तो वो सब खुद ही बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज मैंने ऑफ द रेकॉर्ड उनसे बातें की हैं. अच्छा बाबर, आप खुद ही अपने बारे में बताएं. Okay. First of all, thank you so much for having me. It's been a great time since you started the conversation. So I am basically a salesman at heart. I sell technology for a living. And apart from that, I'm a startup enabler. I help startup in terms of mentorship, in terms of funding, in terms of exposure, in terms of transfer of technology. And that's pretty much it. Helping the ecosystem becoming more active, make it more thriving, and make it more full of opportunities for our upcoming generations. Yeah, that's great. Actually, I'm inspired by the work you are doing. अच्छा, मुझे ये बताएं, how do you get into sales? How did I get into sales? Okay, this is an interesting thing. So just like the rest of us, I graduated in Pakistan with lack of resources, lack of opportunities at hand. And I started off with the BPO sector. I joined a call center after I graduated. And so that was the start of me for sales. I mean, वो पता चला कि यार क्रैडल उठाकर phone पर sales की जा सकती है. So it was very fascinating. It was very astonishing at the same time. फिर समझ आई कि यार लोग IT की चीज़ें भी बैठ के सेल कर रहे हैं. So that's how I started my journey as a salesman, selling tech services, tech products for mostly people in the United States. Then at some time I was selling in the United Kingdom as well, in the Middle East, and across the world. And that's how I got into sales, and that's how it shaped into where I am today. अच्छा, कॉल सेंटर का बड़ा एक पहले तो हम थोड़ा सा कॉल सेंटर को मैं चाहूँगा कि देखें कि कॉल सेंटर्स करते गए हैं. और ये बड़ा आजकल पब्लिक में भी ये चीज़ डिस्कस होती है कि कॉल सेंटर्स बड़ा स्कैम हब हैं पाकिस्तान में और बड़ा दे आर ब्रिंगिंग बैड नेम टू पाकिस्तान. तो उसमें क्या कितनी सच्चाई है? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कॉल सेंटर्स बैड नेम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, उनकी बहुत छोटी परसेंटेज है एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर रियली वर्किंग और BPO सेक्टर को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं. There are a lot of call centers in Pakistan now, especially in the year 2023. And I would say that all of them are doing good job. सारे अच्छे job कर रहे हैं. The problem is basically with our culture, हमारा mindset. Around 13-14 years ago, when I started my journey in the call center industry, so people used to look at me from a very different angle. They used to be like, अच्छा call center, लोगों को समझ नहीं आती थी कि ग्रेजुएशन के बाद कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, इसका मतलब डिग्री में कोई प्रॉब्लम है या आप नालायक हो, आपके पास ये आपको यूनिलीवर ने नहीं उठाया, आपको एंग्रो ने नहीं उठाया, आपको किसी बैंक ने नहीं उठाया. तो कॉल सेंटर में वो यूजुअली वो लोग जाते थे कि जो कि बैक बेंचर्स होते थे, लूजर्स होते थे, आप ये कह लो. सो
ऑल्दो ये हमारे कल्चर का कह लो एक डायलेमा है, ये हमारी सोसाइटी का डायलेमा था, एंड that's the reason why after a couple of years I realized that we have to reshape this entire sector. I was really impressed with the work that Indian BPOs were doing. The reason why Indian BPOs हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया की टेक सीन इतना एक्टिव हुआ है, उसको एक्टिव करने के लिए उनके BPO सेक्टर वाज द स्टार्ट. इनिशियली BPO सेक्टर स्टार्ट हुआ, BPO सेक्टर फ्लरिश करता करता इंडिया को उस पॉइंट के ऊपर लेकर गया कि जहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करी. उनको रियलाइज हुआ कि Yes, the importance of technology was from the BPO sector. Achha. And unfortunately, in Pakistan, the BPO sector does not fall into the white collar category, neither does it fall into the blue collar category. So, वो हर कोई आपको एक बड़ी अजीब सी नज़र से देखता था कि यार कॉल सेंटर का लड़का है, कॉल सेंटर की लड़की है, इनका क्या होगा, इनकी क्या स्टैंडिंग होगी. रातों को जाते हैं, सुबह सुबह आते हैं, सारा दिन सो के गुजार देते हैं. तो those kind of dilemmas in the culture that we live in. So that was you could say the main reason why I stayed in this industry. And alhamdulillah, today I'm very proud in saying that I am a salesman at heart. मैं जो कुछ मर्जी करूँ, I have a VC fund in the pipeline which will be launched probably by the end of next month. And apart from that, we are also working on a venture studio, which will be the first of its kind in Pakistan. Along with that, I am bringing in investment opportunities in Pakistan. So coming back to the sales thing, ये सारी चीज़ें की जर्नी, इन सारी चीज़ों की शुरुआत वो सेल्स से ही हुई थी. स्टार्ट BPO से ही लिया आपने. स्टार्ट BPO से ही. अच्छा, आप ब्रेक इज पाकिस्तान BPO सेक्टर, बाद में हम देखेंगे कि इंडिया का कितना है, लेकिन पहले आई वुड लाइक टू नो कि कितना है पाकिस्तान. पाकिस्तान का BPO sector is quite good. At the moment, you could say easily about every city is capable of bringing in millions of dollars every month. Every city in Pakistan, and I'm not talking about the tier 1 cities. मैं KIL की बात नहीं कर रहा. I'm not talking about Karachi, Islamabad, Lahore. I'm talking about Faisalabad. I'm talking about Hyderabad. I'm talking about Peshawar. I'm talking about other small tier 2, tier 3 cities के जहाँ के लड़के लड़कियों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है. ठीक है, तो BPO सेक्टर आप कह लो कि अभी भी आपकी यूथ अगर चूज करती है तो there are about 10% of your graduates who end up in a BPO. ठीक है, still the percentage is very small. And again, it's mainly because of lack of understanding. It's because of lack of exposure. And generally आपको पता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो सेल्समैन ही रहता है. ठीक है, वो हमारी तरफ बड़ा क्रिटिसाइज करके देखा जाता है कि यार वो कोई जिसको कुछ नहीं आता, अच्छा यार चलो सेल्स की नौकरी कर लो, जो कि गलत है. अगर आप इंटरनेशनली उठा के देखें तो यू वुड फाइंड थ्योरीज, यू वुड फाइंड सर्टिफिकेशंस, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने अपना करियर एज अ सेल्समैन स्टार्ट किया था. After a couple of years, I realized the importance of sales. When I grew up as a professional, जब मुझे exposure हुआ product teams के साथ, finance teams के साथ, marketing team के साथ काम करना शुरू किया, सारा कुछ किया. So then I realized here sales is very important. Sales is the engine that drives your entire organization. चाहे आप one man show हो, या चाहे you are 1,000+ employee company, you are a multinational. If you're not generating sales, you're nowhere. अच्छा, उसमें फिर एक और डायलेमा है कि जिस तरह आपने बात की कि हमने अभी बात की कि 10% यूथ आता है आपका BPO के अंदर, और वो 10% यूथ इतना एजुकेटेड नहीं होता, वो 10% यूथ इतना स्किलफुल नहीं होता कि दैट कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ गुड सेल्स पर्सन. सो वो ट्रेनिंग्स, वो मेथडोलॉजीज, उन चीज़ों को थोड़ा सा आके लेके चला. अभी राइट नाउ आई हैव माई ओन स्टार्टअप. आई रन दिस कंपनी विद द नेम ऑफ Salezlytics. And we at Salezlytics, we help people becoming a better salesman. We help companies in becoming better at sales. आप आजकल देख रहे हो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं. Facebook was running a program for women in Gilgit Baltistan so that they can start using these platforms to sell their stuff online. इसी तरह पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, I'm sorry, let's talk about पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं. हर प्रोग्राम आपको एक टेक्निकली उसके ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है आज तक जो कि आपकी सेल्स कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके. आपकी प्रोडक्ट तो तैयार हो गई, आपने सब कुछ बना लिया, अब आप उसको बेचेंगे किस साथ? ठीक है. और ये भी देखने में आया है ओवर द इयर्स, व्हाट वी हैव सीन इज दैट कि जो लोग अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, दे आर नॉट गुड एट सेल्स, या जो लोग अच्छे मार्केटर्स होते हैं, दे आर नॉट रियली, एंड देयर बिजनेसेस फेल. That's why they fail. Yeah. So अब होता क्या है, अब लोग बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार मेरे प्रोडक्ट के लिए फलाना बंदा उठा लिया इतने पैसों के ऊपर, वो एक्स करीम था, एक्स एयरलिफ्ट था, एक्स की ट्रकिंग था, और वट एवर. ठीक है, आप प्रोडक्ट के लिए बंदे उठा लेते हैं, आप मार्केटिंग टीम के लिए इसी तरह टीम के बंदे उठा लेते हैं. You pick people from Unilever, you pick people from Angro, you go for graduates from IBA, LUMS, NUST, and
other big names. And when it comes to sales, they're like, okay, let's just get the best manner. ठीक है, उसके लिए आपका क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए आपकी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, उसके लिए आपकी कोई आउटकम नहीं है. और सबसे जो अगर रिटेंशन चैलेंजिंग अगर होती है जिन रोल्स के लिए, तो उसमें सेल्स इज टॉप ऑफ द लाइन. सेल्स पीपल को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है. एंड दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द लैक ऑफ कल्चर वेयर वी आर लिविंग. कि आज तक वो सेल्समैन को एज अ सेल्समैन देखा जाता है, उसको एज अ सेल्स प्रोफेशनल कभी नहीं क्रिएट किया देखा जाता. So when I wouldn't say I migrated from the BPO sector, but after a couple of after my first job, I ended up working with the VC, where my job was more of a pilot. I used to test the products. I used to do the market research, work with the pricing, work on features with the product team, and eventually making a fine product. फिर उसको उसकी इनिशियल सेल्स कि वो किस मार्केट में की जाए, किस तरह के लोगों के साथ की जाए, क्या डायनामिक्स हों, वो सारा ट्रांसफॉर्म करके आई यूज टू हैंड ओवर द प्लेन टू द सेल्स टीम विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिगरसली जनरेटिंग सेल्स ओवर दैट. एंड आई यूज टू मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट, कोई और प्रोडक्ट उठा लिया, उसके ऊपर आ गए, उसका बैठ के A to Z फिर यही सारा स्ट्रक्चर डिफाइन किया, एंड देन हैंडिंग ओवर द प्लेन to the sales team, and it gets to a particular point. So that's where I realized कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है कि हम BPO प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग के ऊपर से चले जाते हैं, वहाँ पे हम जाके सेल्स कर लेंगे, कस्टमर सपोर्ट कर लेंगे, कंटेंट राइटिंग कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम जो हमारे पास बिजनेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम लैक करता है. दे आर नॉट गुड एट सेल्स. अब इन पाकिस्तान आई एम श्योर जितने पॉडकास्ट सीरीज आप कर चुके हैं, जितना एक्सपोजर आपका है, यू विल फाइंड very good products, you would find excellent teams, but you would not find them growing in terms of their revenue, in terms of their sales. And that's where Salezlytics steps in. So Salezlytics basically enables you as a person. This is our first goal कि आप इस चीज़ को खुद समझिए कि यार आप entrepreneur हैं. Entrepreneurship does not get complete until and unless you are a salesman. ठीक है, आप चाहे कुछ भी बना लें, सप्लाई चेन बना लें, प्रोडक्ट बना लें, लेकिन अगर आपके पास उसका सेल्स साइकिल नहीं है, आपके पास उसकी सेल्स की वर्कफोर्स नहीं है, तो आई डोंट थिंक यू आर क्वालिफाइड इनफ टू बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर. लेट्स से वेरी सेल्स holds so much of weightage. So that's how the journey started, and that's the reason why I'm here, so that we can reshape this ecosystem. From salesmen we could transform this into sales professionals. ठीक है, जिस तरह globally होता है. And you would be surprised to see globally it's a white collar job. Sales professional are taken very seriously. ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली डायलेमा है कि लोग इस तरफ आते नहीं है, हमारा यूथ डरता है, घबराता है. So I go to these universities, I go to these fairs, where we interact with startups or where we interact with the upcoming generation, and all of them are inclined towards HR, marketing, big data, artificial intelligence, सारा कुछ. तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि यार बना लोगे, सब कर लोगे, बेचोगे कैसे? And trust me, the look on their face is amazing at that moment. यानी वो शक्ल देख के ना मुझे समझ आ जाती है कि यार you were not prepared for this. So हमारे स्टार्टअप्स, हमारे कल्चर में थोड़ा सा ये चेंज करने की ज़रूरत है कि सेल्स इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस. सेल्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है. सेल्स करके ही आप लर्न करते हो, और सेल्स इज द इंजन दैट ड्राइव्स योर एंटायर बिजनेस. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन अच्छा, इसमें ये चीज़ें हैं कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अगर डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो आपकी सेल्स में, तो इन योर जर्नी हाउ डिड यू डेल्ट विद योर डिसअपॉइंटमेंट्स जो आई? क्योंकि रिस्पॉन्स जो होता है, आप जिस तरह से भी उनसे कम्युनिकेट करते हो, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बात करते हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसका आपको रिस्पॉन्स 100% मिले, पॉजिटिव मिले. तो फिर आप उन चीज़ों को कैसे डील किया? I'll tell you this interesting thing. I'm pretty bad with numbers. Numbers जहाँ पर आते हैं ना, बस वहाँ सर दर्द होने लगती है. लेकिन उसके साथ साथ I'm always good in making my own numbers, understanding how things are happening. So आपने जो बात की वो नेगेटिविटी को आप किस तरह cater करते हैं. The biggest motivation is in a salesman is your failure. I used to make 100 calls in a day, and out of 100 calls, we used to have about 3 or 4 conversations. Like, out of those 3 or 4 conversations, I used to be very confident that one of them is going to be a customer at the end of the day. So, अगर आप सेल्स को उस तरह देखो तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, एनुअल टारगेट, ठीक है होता है. बट इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू डेज, इनटू वीक्स, it's peanuts. And
anybody who is dedicating 8 hours of their time to work, to earn, उनके लिए बिल्कुल भी ये challenge नहीं होना चाहिए. What kept me going was the motivation to make it happen, was the belief that I will find a good customer. And again, I'm very thankful to my bosses. As we were having a word about this offline. So my bosses taught me a lot. My first boss taught me how to sell things. Okay. And there used to be a time, I still remember that once I literally gave up, broken down, shattered. I walked up to him and I was like, would you terminate me or should I put up my resignation? ठीक है. तो यहाँ तक बात हाँ बिल्कुल यहाँ तक बात पहुंची एक टाइम पे कि जहाँ पे उन्होंने कहा, मैंने कहा जाके, I walked up to my boss and I was like, सर फायर करेंगे या रेजिग्नेशन लेटर टाइप पे. तो he was like कि यार वापस जब सीट पे बैठ जाओ और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, we are not even talking about anything. So अच्छा, and he gave you that much confidence. He gave me that much confidence, and I'll tell you the result of that confidence. So what happens 3 months down the line, 6 months down the line, the same guy जिसको मैंने जाके कहा था कि यार या मुझे फायर कर दो या मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो, he was handing me over the key to my first official car, and he handed me over my promotion letter. अच्छा, so फिर मुझे भी सेल्स में डाल दें. So this is what kept me going. I mean, my bosses, they fueled me up in a way. They ignited that spark in me in such a manner that I did not need any other motivation to move forward. मुझे एक बात समझा दी गई थी उस वक्त मेरी पहली जॉब के अंदर कि जी आप सेल्समैन हैं, आपने सेल्स करनी है. ठीक है, there are good days, there are bad days. और हमें शायद वो मैं सेल्स इसलिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि वो हमारी यूथ अब वो रेजिलियंट नहीं रही. So I personally think that when you become a salesman, for a couple of years when you are into sales, you become resilient. ठीक है, आप वो 100 phone calls हैं, 99% आपकी बात नहीं होगी. You would end up with a terrible conversation. लेकिन that one call, that 0.1%, that weightage, that would make your day be heavier than the entire 99.00%. अच्छा, वो 1% कॉल या एक उस कॉन्वर्जेशन की वेटेज इतनी, कन्वर्जन एक भी हो जाए बेशक, कन्वर्जन एक भी हो जाए. दूसरी हमारी तरफ सेल्स को क्या एक वो डायलेमा लिया जाता है, एक सजा के तौर पे लिया जाता है. इतनी करके देनी है, नहीं तो बैठे रहोगे. दूसरा चैलेंज क्या आ जाता है कि जी इतनी सेल एक दिन के अंदर करनी है या एक टाइम लाइन होती है. मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि जी आप लोगों की जॉब्स में और सेल्समैन की जॉब के अंदर फ़र्क ये होता है कि आपने एक रिपोर्ट लिखनी है ना, आपके पास एक टाइमलाइन है. You could finish that early, you could be late, but a salesman doesn't have that opportunity. ठीक है, एक लीड उसके पास आई है, उसने उसी दिन उस लीड को फॉलो अप करना है, कॉल करनी है. अगले दिन करेगा या 2 दिन बाद करेगा ना, तो शायद कोई और उसको कॉल करके सेल कर चुका होगा या वो अपना माइंड चेंज कर चुका होगा. तो हमारे क्या होता है, हमारे वो रियल टाइम ऑपरेशंस होते हैं, रन टाइम डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं. I think that is the reason why people tend to run away from it. You have to be on your toes. You have to be आप तो हर वक्त fight and flight mode में रहते होंगे फिर तो. I think that's a part of me now. वो घर में भी अब हर काम या ऑफलाइन भी सारे काम इसी पेस के ऊपर हो रहे होते हैं या उसी माइंडसेट के साथ हो रहे होते हैं कि यार ये टाइमलाइन है, I need to fulfill this. Yeah, this is a target that I need to work for. This is a target that I need to achieve. So as I was saying, this thing made me more resilient than I naturally was. And this is again a reason that I want to carry this forward to our youth. I don't want them to take it as something for the rest of their life. Lekin I would definitely want the upcoming generation to put their feet into sales. एक दफ़ा सेल्स करके देखें, सेल्स को एंजॉय करें. सेल्स को जहाँ आपने प्रेशर लेना शुरू कर लिया ना नंबर्स का, वहाँ पे यू आर गॉन. एंड जहाँ पर आपकी नर्व्स काम है, यू आर टेकिंग थिंग्स स्मूथली, ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग बेटर इन लाइफ यू कुड डू. It's that simple. It's just having that one conversation. हमारी तरफ बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम बात नहीं करते. ठीक है, स्पेशली प्रॉब्लम्स के बारे में, चाहे घरेलू प्रॉब्लम्स हो या चाहे पर्सनल हो या चाहे बिजनेस की प्रॉब्लम्स हो, हर कोई वो अपने नट शेल के अंदर, everybody wants to be in that shell. They don't want to open up. They don't want to talk. Fear factors, a lot of them. Everybody has different set of fear factors. So बाहर आपको क्या सिखाया जाता है? ग्रूमिंग ऐसी होती है ना आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सोशली आपकी ग्रूमिंग ऐसी होती है. Exactly, that's what I'm referring to.
कि बाहर क्या कल्चर है कि वो they try to be as open as possible, they try to be vocal about their feelings, they try to be vocal about their issues. हमारी तरफ क्या कहा जाता है कि ना 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 ना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बात करनी बाहर जाके बेटा, ये ऑफिस में क्या है यार, ये बात अब उससे कर दी ना तो बस ये देखना क्या होगा। बॉस को अगर कह दिया ना तो वो तो निकाल देगा बस। yes so वो unfortunately because of all of these mindsets वो सेल्स बिला वजह लेवल हो गई है। ठीक है नहीं तो अगर realistically practically I tell you that there's a lot of learning for people. In fact there was a time when we were developing a curriculum for one of the leading schools in Pakistan from an incubation perspective, and I literally had a very good conversation with the management about sales. Okay, and alhamdulillah, I was able to convince them to add sales as a part of their curriculum, their incubation curriculum, not the academic curriculum, so that they can improve their youth in terms of speaking, in terms of selling their products, in terms of selling their services. कि देखें बात तो वही वाली आती है कि अगर आप सब चीज़ें अच्छी बना लें और उसको बेचना नहीं आता तो बस फिर you have nothing at hand. You have nothing at hand. So that's the reason to improve that process, to improve the people. And this is how the journey evolved into the startup ecosystem. And just trying to bridge gaps, just trying to make people earn better. आपने देखा है कि rupee devaluation has been very strong over the last 1 year. Right now where we are, I think this is the way forward until and unless people open up about it. लोग जब तक अपने ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर हम देखें, आप डिफरेंट सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आप हैं टेक सेल्स में रहे, तो हाउ डिड यू गो इनटू टेक सेल्स? और मैं शायद क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं आई एम माई सेल्फ क्यूरियस अबाउट इट कि आप टेक सेल्स में क्यों गए? यू हैव अदर अपॉर्चुनिटीज गोइंग इनटू रियल एस्टेट, you have बाकी भी और बहुत सारी ये तो exactly. So yes, there was a time when after a couple of years, my family started telling me that if you're good at sales, why don't you get into real estate? यार real estate में आ जाओ, बहुत पैसा। इधर तो यही कह रहे हैं मलिक रियाज बन जाओगे। exactly that was the motivation which I was offered. तो say real estate में आ जाओ, बहुत पैसा है। Then another friend came in, he started saying कि यार telecom में आ जाओ, telecom में बहुत पैसा है। So, as I said, I was born and raised in the Middle East, which is far ahead of where we are today even. अगर आप 2023 में भी दो मुल्कों को कंपेयर करें, दो रीजन्स को कंपेयर करें, तो मिडल ईस्ट बहुत आगे है एशिया से या सब कॉन्टिनेंट से। तो मैं एक डेवलप्ड कंट्री से एक अंडर डेवलप्ड कंट्री आया। टेक्नोलॉजी यहाँ पर कहीं पे दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी उस ज़माने के अंदर। शॉक लगा, बहुत सारी चीज़ें मैनुअली होते हुए देखी। I still remember there was a time I bought a bread from a very renowned bakery, and they were not printing the expiry date on it, and I was surprised कि यार ये सही भी है या नहीं। I mean इसके ऊपर एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी है। इतना बड़ा डायलेमा था कि यार एक्सपायरी डेट के बाद प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप। So खैर this is just a part of that journey that I went through. तो इस सारी उसके अंदर रियलाइज ये हुआ कि यार दुनिया रियल एस्टेट की तरफ भाग रही है, लोग यहाँ पे और बिजनेसेस की तरफ भाग रहे हैं। एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली निगलेक्ट की जा रही है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा, दिस इज व्हाट आई रियलाइज व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड एज वेल कि यार टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत कम एवेन्यूज़ हैं, बहुत कम बातचीत की जाती है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। सो दैट सॉर्ट ऑफ बिल्ट इन दैट मोमेंटम विद इन के देन आई डिसाइडेड कि यार आई वांट टू स्टे इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, बीपीओ से भी ये आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा, जब आप थे कॉल सेंटर में थे तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि अगर वो लोग जिस तरह की प्रोडक्ट्स की सेल्स कर रहे हैं तो वो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग। तो उस चीज़ से भी आपको रियलाइजेशन हो गया। तो आप फिर आपने इसलिए तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं करते टू बीपीओ। डेफिनेटली दैट्स अगेन वन ऑफ द रीजंस। अगेन हमने बीच में थोड़ी सी बात की थी इंडिया की, तो जो मैं आपको सुबह बात कर रहा था कि इंडिया आईटी में जितना स्ट्रांग हुआ है ये अपने बीपीओ सेक्टर के फ्लरिश होने के बाद हुआ है। अच्छा, ये कौन से टाइम से, ये उनका बीपीओ कौन से टाइम से? Their BPO was flourishing back in the late 90s when we never had a thought of BPO. जब उन्होंने ये रिफॉर्म्स लाए। कॉल सेंटर इंडिया में 1995, 1998, 1999 ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करते थे। हाँ, एग्जिस्ट करते थे। फिर और रिफॉर्म्स लाए गए मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे, और टेक पॉलिसी उन्होंने उस टाइम पे दी, और
उन्होंने इंस्टीट्यूट्स बनाए, पहले भी इंस्टीट्यूट्स थे उनके, तो लेकिन बट दे मूव द फोकस. अच्छा, यहाँ पे एक उसके अंदर कैटलिस्ट का काम जिस चीज ने अदा किया था, द कैटलिस्ट वाज दैट पर्टिकुलर दैट सेगमेंट ऑफ पीपल. वो जो इनिशियल अडेप्टर्स थे ना, कि जिन्होंने कॉल सेंटर में जाके जॉब शुरू की या बीपीओ प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए एंड दे मेड अ करियर आउट ऑफ इट. इंडिया की टेक सीन के अंदर दे वर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेक अडेप्टर्स. दे वर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ फाउंडर्स, क्योंकि दे वर, आप वाली बात कि दे वर एक्सपोज्ड टू द टेक्नोलॉजी ऑलरेडी. जो कि मेरा केस भी था कि मैं भी बीपीओ के अंदर गया हूँ, तो तब मुझे पता चला कि यार और मुल्कों के अंदर क्या सॉल्यूशंस हैं या क्या चीज़ें हैं, या वहाँ टेक्नोलॉजी की स्पेस के ऊपर चल रही है. So that's how India's telecom, the IT sector flourished, and this is how I think we started off on the right track. I would say, hats off to General Musharraf. He was the one who laid the foundation for the BPO sector in Pakistan, and since then, also I would like to thank Dr. Ataur Rahman. वो पहले थे पाकिस्तान में, जिस तरह मनमोहन सिंह की आपने अभी का रेफरेंस कोट किया. He was also very influential person when it comes to Indian policy making. So Dr. Ataur Rahman and General Musharraf, they literally laid foundation for the BPO sector in Pakistan. इन्होंने वो सेंस दी लोगों को, इन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की कि हाँ यार, इस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हो. हमारा मसला कहाँ पर आया कि जहाँ पर वो एक सेट ऑफ फाउंडर्स स्टार्टेड लीविंग पाकिस्तान. देखिए, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन होता है, बहुत छोटी सी बात है, वी आर 1:8. 1:8 ठीक है. तो हमारे पास वो चंक ऑफ प्रोफेशनल्स 70s के अंदर the chunk of professionals went out, 80s के अंदर बाहर चले गए, 90s के अंदर बाहर ही जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं. हमारे यहाँ पे रिटेंशन नहीं हो रही, जिस वजह से हम आज भी स्लो हैं. So you know, a lot of people ask me कि यार, when are you going out? I'm like, dude, I will go out someday, but not now. This is not my time to go out. I have taken a lot from this country, and this is my time to pay back. सो अगर हर कोई वो होगा ना कि यार वो डिग्री कंप्लीट करके आपने मुल्क से बाहर चले जाना है, फिर आप अपने बच्चों को भेज दोगे 10-20 साल बाद, 30 साल बाद, कि जाओ बेटा पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ अच्छी, वहाँ से पढ़कर वापस सऊदी आ जाओ, वापस दुबई आ जाओ, वापस शिकागो आ जाओ, वापस लंदन आ जाओ. सो एज लॉन्ग एज दिस इज हैपनिंग, अनफॉर्चुनेटली विल नॉट फ्लरिश. फिर अगेन लैक ऑफ एक्सपोजर. हमारी तरफ आपको पता है कि एक और बहुत बड़ा डायलेमा है कि वो बच्चा पैदा होता है ना, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील. एक और वकील तो नया नया है. हाँ, वकील अभी नया है जरा 2005-6 के बाद. हाँ, जनरेशन है. नहीं तो द जनरेशन, द एरा दैट वी ग्रू अप, आई ग्रू अप इन, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा तो तीसरा कोई कुछ था ही, ऑप्शन ही नहीं था, कुछ था ही नहीं. ये करना है बस. ठीक है. और वो एक अंडरस्टूड चीज थी. हाँ, या फॉर सर्विसेज ऑफ कोर्स, इफ यू आर, यू नो, फ्रॉम, स्पेशली इफ यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन पंजाब, यू आर फ्रॉम पंजाब फैमिली या पठान फैमिली, तो एक वो भी आ जाता था कि यार अच्छा चलो डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, बस ठीक है, बहुत सेफ साइड है. वो पक्की जॉब. टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा था, कोई बात ही नहीं कर रहा था. अब मेरे वालिद साहब हैं, वो आज दिन तक बैठ के मुझे कहते हैं यार, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डू, एंड आई हैप्पीली से कि सर, दैट्स व्हाट आई डू. सो यू नो, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे टाइम के ऊपर वो एक्सपोजर नहीं था टेक्नोलॉजी का. मैं आज बैठ के ये अपनी जो जिन स्टार्टअप्स को मेंटोर करता हूँ, ये जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज व्हाट आई टेल देम, दैट डूड, you guys are lucky you have so many things at hand. Back in the days, घर में अपनी मर्जी का प्रोफेशन ही फॉलो करना, खानदान में अपनी मर्जी का प्रोफेशन ही फॉलो करना या चेज करना. अब तो इतनी लेवरेज मिल गई है. अब आपको लेवरेज मिल गई है, लेकिन उस टाइम के ऊपर डायलेमा होता था. वो जो बात स्टार्टिंग में आपके भी मुंह से मैंने सुनी कि सेल्समैन. हाँ, मैंने आपको बताया ना कि मैंने जब आपका नाम दिया तो टीम ने कहा कि यार सेल्समैन, तो आपने तो पूरी डोमेन ही अपनी चेंज कर ली है. ठीक है. तो ये चीज़, अच्छा, मैं I'll get back to India. मैं बेसिकली ये चीज़ हम दो, हमारा कंपैरिजन नहीं है, बट हम एक ही टाइम पे, हमारी जो पार्टीशन के टाइम पे हमारी इंडिपेंडेंस सेम है, हमारा कल्चर सेम है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा है. टेक में चलें, 90s में उन्होंने काम किया, वो उनका बीपीओ सेक्टर आप कह रहे हैं कि उनका एक, समझ लें कि वो स्टार्ट था जो जिसने उसको बूस्ट किया उस चीज़ को. लेकिन नाउ यू माइट बी इन कांटेक्ट विद इंडियंस जो कि सेल्स में है, उनका माइंडसेट क्या है, और वो आजकल किस तरह की बात कर रहे हैं, और हमसे वो किस तरह से डिफरेंटली सोच रहे हैं. देखिए, वेरी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया ने अपना मिशन भेजा है टुवर्ड्स मून और मार्स. तो वो पहले एक फेल हुआ, दोबारा ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं अभी भेजने के लिए. वो कोशिश कर रहे हैं.
ठीक है, Yeah. और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक नेशनल आईटी पॉलिसी, सो दैट्स डिफरेंस. नहीं, हमारा यूथ, मैं इंडिविजुअल्स की मैं इंडिविजुअल्स पर यार हूँ. देखिए आपकी पॉलिसीज दे शेप अप योर यूथ. अब हमारी पॉलिसीज या हमारे मुल्क में द टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, अगर इतनी नॉलेज, इतनी अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी की दी जाती, या इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी नॉलेज एक वीसी फर्म की दी जाती या स्टार्टअप फंडिंग की दी जाती, तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मेरे लॉट के, मेरी जनरेशन के लोग जो कि एंग्रो में या आगे पीछे और इदारों में चले गए हैं, वो स्टार्टअप्स खुद करते. ठीक है, वो खुद कुछ चीज़ें क्रिएट करते, वो खुद इनोवेट करते. हमारे पास इनोवेशन की पॉलिसी नहीं है. The other day we were having a chat with somebody from a couple of your government bodies, और उनसे मेरा एक ही सवाल था कि एक ही मेरा पॉइंट था कि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ है हमारी? हाँ, R&D तो जीरो. आपकी अगर R&D जीरो है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट, आपकी R&D जीरो है, क्यों R&D जीरो है? कि आपके पास पॉलिसीज नहीं है. एक बच्चा या बच्ची R&D के लिए आता ही नहीं है क्योंकि उसको पता है कि यार पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट करती, कोई सपोर्ट नहीं एग्जिस्ट करती, कोई मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता. अब सेम इज द केस फॉर सेल्स. आपके पास लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज, गवर्निंग बॉडीज हैं, आपके पास डॉक्टर्स की बॉडीज हैं, आपके पास हर प्रोफेशनल का एक ग्रुप है, C100 फोरम है, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स, बट यू डोंट हैव अ प्लेस, you don't have a group, you don't have a cult, you don't have a union for sales professionals. Don't you think कि आप सेल्स वालों को ही you have to take this initiative और आपसे खुद करना पड़ेगा? I think that's pretty much in the pipeline, and very soon we are going to come forward with this because it's the need of the hour. The number of redundancies we have, the number of jobless people we have in our economy. I think in order to provide them with better avenues, this is the way forward, and we are alhamdulillah working on it. Inshallah, very soon we'll share the developments. So coming back to the policy part which I was referring to, कि India क्यों एडवांस है, कि India पॉलिसी बनाता है, India अपने यूथ को उसके ऊपर चलाता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, वो माइंडसेट कल्टिवेट करता है. हमारी तरफ क्या है, हमारी तरफ माइंडसेट नहीं कल्टिवेट किया जाता. हमारी तरफ एक ग्रेजुएट बच्चा बच्ची होते हैं ना, उनको हम क्या सिखाते हैं कि बेटा 4 साल की एजुकेशन हो गई, ठीक है, वॉक आउट, गो फॉर एन इंटर्नशिप, 6 महीने की इंटर्नशिप हो गई, बेटा नौकरी ढूंढ लो. नौकरी कर ली, ठीक है जी, नौकरी होगी, नौकरी बन गई, चलो बेटा मास्टर्स कर लो या शादी कर लो, 2 ऑप्शन. ठीक है, वो आपने बैचलर्स करने के बाद जो भी साल 2 साल 3 साल के अंदर कुछ चंक सेव किया होता है, या वो आपकी शादी में लग जाता है या वो आपके मास्टर्स में लग जाता है. अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है जी, जब बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का, हाउ एंड व्हाई शुड दे डू देयर मास्टर्स? मेरा एक ये जनरल सवाल रहता है लोगों के साथ, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट एग्री विद दिस, कि आपको अगर एक चीज की, एक इंडस्ट्री का इन एंड आउट पता नहीं है, व्हाई वुड यू वांट टू गेट योरसेल्फ एसोसिएटेड विद दैट इंडस्ट्री? नंबर 1. नंबर 2, जब आपने उस चीज को आगे अगर लेकर नहीं चलना, ठीक है, या आपने बोट स्विच कर देनी है, यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंकरिंग नाउ, यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स टीचिंग नाउ, सो यू नो व्हाई वेस्ट दैट वन सीट? ठीक है, व्हाई वेस्ट दैट वन? मैं डॉक्टर नहीं हूँ. सो वो आप समझ रहे हैं, वो जो माइंडसेट होता है, इंडिया ने वो माइंडसेट क्रिएट किया, वो नेशनलिज्म अपने अंदर लेकर आए. नेशनलिज्म हमारी तरफ अनफॉर्चुनेटली लैक करता है. वो ब्लीड ब्लू एक उन्होंने स्लोगन निकाला था अपना किसी ज़माने में, ठीक है, वो ब्लू उनकी इंडिया क्रिकेट उनकी क्या कहते हैं वो, व्हाट डू यू कॉल दैट, क्रिकेट यूनिफॉर्म किट है. सो उसकी रिजेम्बलेंस में उन्होंने निकाला था ब्लीड ब्लू. हम निकाली है ब्लीड ग्रीन. हमने कहाँ कहा, यही तो मसला है, हमने कहा ही नहीं. उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने दुनिया में इस बात करके दिखाया. उन्होंने दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटा कि जी ब्लीड ब्लू, मेड इन इंडिया, we are Indians. They took pride in it. Whereas, you know, we go to other countries and we go to other places, we try to shy away कि यार introduction passport छुपाते हैं. Yes. So you see, वो mindset हमने नहीं cultivate किया. हमने वो अपने youth को innovation के लिए नहीं prepare किया. हमने हमेशा वो within the box logic apply की है. हमने within the box अपने बच्चों को रखा है. जिस दिन तक हम अपने बच्चों को उस box से नहीं निकालेंगे, ना हमारी economy innovation की तरफ जाएगी, ना हमारे चैलेंजेस कवर होंगे, ना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जा सकेंगे. इस चीज़ के लिए देखें, मैंने इंडिया की आपको एग्जांपल दी. पहली चीज़ आपने मुझे क्या बोली, एक फेल हो गया उनका. दे हैव अ लॉट ऑफ फेलियर्स, बट वी डोंट इवन हैव फेलियर्स. फेलियर क्या है, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने अटेम्प्ट की, उन्होंने एक डायरेक्शन में वर्किंग की. हमारी तरफ तो मसला ये है ना कि उस डायरेक्शन में वर्किंग की बात तो बहुत दूर की बात है. हमारी तरफ तो उस डायरेक्शन में बात करने के लिए लोग रेडी नहीं है. We are sitting at the NICAT.
Yeah. This is Asia's first Technology. National Incubation Center for Aerospace Technology. Yeah. ठीक है, आज से पहले तक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी या एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी collectively, you tell me one government report, you tell me one research paper in Pakistan that had something about aerospace or aerospace technology. अच्छा, when I came over here, बस मुझे इतना पता था ये they would be working on drones और aeroplanes, बस इसी चीज़ में होंगे. ठीक है, that's the thing. अब when you look at aviation itself, it's a huge industry. Yeah, it's a huge industry. And there are startups, मैं ऐसे startups को जानता हूँ कि जो एयरबस के साथ काम कर रहे हैं, जो बोइंग के साथ काम कर रहे हैं. They're not Pakistanis. No, they're not Pakistani startups. And you would be astonished to know that they are young chaps. ठीक है जी, majority of them they are under 22. अच्छा, हमें तो ये कहा जाता है बस हमारे जो यंग लोग हैं उनको तो बस ये है कि आपने फोटोशॉप सीख लें, छोटी छोटी सी स्किल्स हैं. अभी हम तो उस इतने बेसिक पे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि फोटोशॉप एक बुरी चीज़ है, आपको आना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अभी तक बेचारे यहीं पे लगे हुए हैं और दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन. ठीक है, हाँ, ये चीज़ देखिए, आपकी बात से मैं थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे लेके जाऊंगा. कोई एक ज़माना होता था वो कहते थे कि यार MS वर्ड आता है. हाँ, आप ग्रेजुएट होकर निकलते थे ना, तो सबसे पहले कहते थे कि MS वर्ड कर लो, एक्सेल कर लो, ठीक है, पावर पॉइंट कर लो. ये नहीं आता, ओ जॉब नहीं मिलेगी. In 2023 nobody spends time on presentations. PowerPoint fade off हो गया है. Excel नंबर क्रंच करने के लिए अब और बहुत सारे टूल्स हैं. मैं अपना टाइम एक्सेल के ऊपर नहीं वेस्ट करूँगा. तो आप समझ रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक टेक्नोलॉजी से दूसरी सेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे मूव. अगेन यहाँ पे माइंडसेट की बात आती है, एक्सपोजर की बात आती है. एक और चीज़ यहाँ पे ऐड इन करूँगा, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, के एजुकेटिंग योर ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब तक अपनी टारगेट मार्केट को एजुकेट नहीं करोगे. करीम एक पहली दफ़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आया था कि यार आप मोबाइल पकड़ के मोबाइल से आप टैक्सी बुक कर लेते हो. ठीक है, वो हमारी तरफ से ये बात तो वो काला जादू, ब्लैक मैजिक की इक्विवेलेंट थी कि यार यू यूजिंग अ फोन टू गेट योर फूड एंड नेवर, वाओ डूड, यू आर नेक्स्ट लेवल. हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही था. बल्कि ऑन द अदर साइड वेस्ट में बिल्कुल कॉमन था. करीम ने क्या किया, करीम ने उस पर्टिकुलर जनरेशन को टारगेट किया जो कि स्मार्टफोन यूज़र था. करीम ने उनको एजुकेट किया, करीम ने उनको बताया, उनको एक डायमेंशन दी, एजुकेट किया अपनी कैंपेन्स के थ्रू, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, अपनी टीम्स के थ्रू, एंड इवेंचुअली दे बिकेम सक्सेसफुल. सो इसी तरह जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारी तरफ वो लेगेसी सॉफ्टवेयर से हम कभी आगे जाते ही नहीं. हमारे बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है आज तक वो लेगेसी सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे हैं. They haven't moved over to cloud, by the way. A lot of our systems they haven't moved over to cloud. बल्कि जहाँ तक बात करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो वहाँ पर क्लाउड इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर देम. हमारी तरफ क्लाउड के ऊपर बातचीत हो रही है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वेरी रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस्ड an opportunity for people to come in and build their cyber security policy, cyber security training. So now cyber security is something which is new in Pakistan. But if you talk about the rest of the world, बहुत evolve कर चुके हैं cyber security में. कंपनीज है जीरो ट्रस्ट पॉलिसीज पिछले 8-8 साल से 10-10 साल से जीरो ट्रस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके बैठे हुए. पाकिस्तान में जीरो ट्रस्ट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं किसी को पता. कोई बंदा रन कर रहा होता है बिजनेस. अब जीरो ट्रस्ट पॉलिसी के लिए ये नहीं है कि यू हैव टू बी टेक savvy, कि आप कोडर हो तो आपको पता हो कि यार जीरो ट्रस्ट पॉलिसी क्या है. नहीं, अगर आप एक घर के सरबराह हैं आप, ठीक है, यू हैव एक्सेस टू योर वाईफाई, यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स इन योर हाउस, you should know what a zero access to zero trust policy is. ठीक है, आप एक ऑफिस मैनेजर हैं या you are in the managerial tier, you are working for someone, you should know what a zero trust policy is. क्योंकि cyber security involves your phone, it involves your PC, it involves your television, it involves your wearables, it involves everything. आपका डेटा जो आप यूज कर रहे हैं या जो आपके पास डेटा है, तो वो तो it's always in the threat of attack. Exactly, it's always in the threat of attack. अब पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर सोच कुछ भी नहीं है ना. आपने अपनी ऑडियंस को एजुकेट किया. वो एक CSR कैंपेन बैंक्स ने कुछ अर्थ पहले स्टार्ट की थी कि जी बैंक आपको कभी भी इस नंबर से कॉल नहीं करेगा, बैंक आपको कभी भी फोन करके ये नहीं कहेगा. और वो चीज़ें देख के ना हम लोग ना मुस्कुरा रहे होते हैं कि ठीक. I mean, this is something that this is a scam method that people used to do in 1990s
by calling someone and taking their details on the phone and हो गया. और आज भी हो रहा है, आज भी होता है, लेकिन आजकल मेथोडोलॉजी चेंज हो गई अब, और बहुत सारे जरिए आ गए हैं ये काम करने के, और बहुत सारे सक्सेसफुल मेथोडोलॉजीज अनफॉर्चुनेटली आ गई हैं ये करने की. सो वो समझते हैं कि हम वो लेगेसी, हम कोई चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम इवॉल्व नहीं कर रहे. हम एज ए नेशन ग्रो इस वजह से नहीं कर रहे कि हम इवॉल्व नहीं कर रहे. हम आज तक वो एक्सेल, पावर पॉइंट, वो वर्ड के ऊपर स्टक हुए हुए. जबकि ChatGPT 4 लॉन्च हो गया है, ठीक है. एक ज़माना था लोग कहते थे यार कंटेंट राइटर्स, ही इज चार्जिंग दिस मच फॉर कंटेंट, वाओ मैन, ही इज मेकिंग गुड बक्स आउट ऑफ इट. आज आप देखें कंटेंट क्रिएशन की क्या वैल्यू रह गई है, ठीक है. सिमिलरली ये आपकी जितनी जॉब्स हैं जो भी हमने रफली डिस्कस की, कि एक टाइम पे इंजीनियरिंग, एक टाइम पे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस आउट देयर, बट ओवर द इयर्स वी हैव सीन ऑल ऑफ देम फेडिंग अवे. मेरे वालिद साहब जो काम करते थे, आज वो काम एग्जिस्ट नहीं करता, वो इररिलेवेंट होता जाता है थोड़ा तो. So same goes for those softwares, same goes for those ideologies. आप बच्चों को अभी भी एक्सेल सिखा के जब ग्रेजुएट्स को बाहर मार्केट में लैंड करते हो, और उनका मुकाबला जो होता है वो एक ऐसी टीम के साथ या ऐसे लोगों के साथ होता है, या कंप्यूटर की अदर साइड के ऊपर ऐसा बंदा बैठा होता है जो कि ChatGPT यूज कर रहा होगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टूल यूज कर रहा होगा. सो you're getting the idea कि वो हमारी फ्रीक्वेंसी वहां पे मिसमैच हो जाती है. Indians are able to do this very well. ठीक है. Indians, they focus a lot on research and development. They adapt the technology and they carry it to their youth. For example, India की, बल्कि whoever gets a chance, I'm sure आपकी audience भी सुनने के बाद जरूर इस चीज़ के ऊपर attention देगी, and I would want them to take a hint of this. Next time IPL हो रहा हो, कोई इंडिया में कोई मैच हो रहा हो, look at the sponsors. Indian team is sponsored by a tech company. जबकि आपके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम still carries the logo of Pepsi. No, not Pepsi. An estate, what do you call them? Something similar to Beria Town. I wouldn't name them. It would really nice. लेकिन आज तक वो उनकी इनकी स्टेट कंपनीज की ब्रांडिंग लेके फिर रहे हो. So now you understand the difference कि इंडियन टीम की जो यूनिफॉर्म है, जो एक बच्चा इंडियन धोनी को देखकर या युवराज को देखकर या कोहली को देख के जो इंस्पायर हो रहा होगा, वो उसके यूनिफॉर्म के ऊपर देखेगा यार ये क्या नाम लिखा हुआ है, वो सर्च करेगा, वो देखेगा यार ये टेक कंपनी. आप ऑलरेडी समझ रहे हैं ब्रांड क्या बन रहा है. अब पाकिस्तान में कोई यूं अगर शाहीन अफरीदी से इम्प्रेस्ड है, ठीक है, वो देख के कहेगा पार्क व्यू सिटी एंड इट बी लाइक स्टेट, रियल स्टेट. अब आप इसको कंपेयर करें और फिर आप खुद सोचे कि हमारे पास हम क्यों ग्रो. अच्छा, बहुत सारा माइंडसेट है कि रियल स्टेट भी जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है. ये एक अलग टॉपिक है जो कि डिस्कस मैं नहीं करना चाहता. Actually, I have just 2-3 minutes left. I would just say one thing over this real estate investment thing. Unfortunately, आज हमारे challenges की वजह भी यही है. जितना चंक पाकिस्तान में एक इन्वेस्टर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसी के अगेंस्ट अगर वो 10 बिजनेसेस खोले ना, तो उन 10 बिजनेसेस में से 2 बिजनेसेस ऐसे लाजमी होंगे 3 साल या 5 साल के एंड के ऊपर कि उसको वो जो जितनी उसने 10 बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो सारी इन्वेस्टमेंट पूरी करा दे. बट रिस्क नहीं लेने का. देखिए, रिस्क क्यों नहीं लेने का? क्योंकि आपने वो माइंडसेट नहीं बनाया, आपने कभी वो सोच नहीं डेवलप की. इधर आपका बच्चा शादी करके निकलता है, सॉरी ग्रेजुएट होता है, तो सबसे पहले माँ बाप क्या कहते हैं, चलो यार कोई प्लॉट के लिए, घर के लिए पैसे जोड़ना शुरू करो. शादी हो गई, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल? टू बिल्ड अ हाउस. तो जब लगे रहते, व्हेन आवर गोल इज टू बिल्ड अ हाउस, बिल्ड अ प्लाजा, बाय अ प्लॉट, बाय अ लैंड, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट डायरेक्शन. यही होता है मोस्टली. अब आप 2 मिनट ही सोचे ना कि एक प्लाजा बनता है इस्लामाबाद के अंदर, अरबों रुपए लगते हैं. एक आईटी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको अरबों रुपए नहीं चाहिए. एक प्लाजे से आप कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कंपनी कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है. हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो आज तक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज जिनके पास रही हैं, वो लोग कभी इस चीज़ को नहीं समझ सके कि जी रियल एस्टेट ठीक है, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट, बट इट्स नॉट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर योर अपकमिंग जनरेशन. आप सिर्फ पैसा बाहर से पाकिस्तान लाके उसको रख कर उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते. यू हैव टू हैव कैश काउज एट होम. आपके पास वो एक टाइम था बैक इन द डेज, आई बिलीव रफली 3.5 बिलियन करीम 3.5 बिलियन में करीम एक्वायर की थी उबर ने.
उस वक्त रफली इसके हाफ ऑफ द अमाउंट के पीछे हम लोग IMF के पीछे भाग रहे थे। डिफरेंस पे देखना है। वो तो बस चलें, हम लोग बहुत कुछ सीखा आपसे। होपफुली हमारी ऑडियंस जो है वो भी दे वुड गेट अ लॉट ऑफ फ्रॉम इट, और वो सीख के और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक भी आवाज़ पहुंचेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. It was lovely to be here. थैंक यू सर।